welcome you on your YouTube channel SRGC HOD इलेक्ट्रिकल पर। मैं रोहितास सिंह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आज एक नए लेक्चर के साथ, दैट इज लेक्चर नंबर 21, वी विल डिस्कस द ओपन डेल्टा कनेक्शन। So in the previous lecture, that is in lecture 19 and 20, we have covered that is star delta type of connection of three phase transformer. ठीक है, तो we have discussed star star, star delta, delta star and delta delta type, their advantages, applications। ठीक है, फेज शिफ्ट कितनी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच, ये सब हमने डिस्कस किया इन डिटेल इन लेक्चर नंबर 19 and 20। So this is lecture number 21, in which we will discuss open delta or VV connection. This is also called as VV connection because after eliminating one of the single phase transformer, the shape of the connection is of the type of capital V of alphabet. That's why it is also called as VV connection. ठीक है, so let's start with open delta connection. So as its name, that is open delta, it means in that case both the primary and secondary transformers will be connected in delta connection. So let's consider that this is the primary side in which three single phase transformers are connected in delta. ठीक है, this is phase A, this is B and this is phase C. ठीक है, ये तीन ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास और डेल्टा में ये कनेक्ट है। सो दिस इज फेज ए, दिस इज बी एंड दिस इज फेज सी। दिस इज लाइन करंट आई ए, दिस लाइन करंट इज आई बी एंड दिस लाइन करंट इज आई सी। दिस ठीक, यू कैन सी दिस इज द कॉइल और ट्रांसफॉर्मर ए, सो इट विल बी A1, it will be A1, it will be A2. Similarly, this transformer is transformer B. This is B1, this is B2 and this is C1 and this is C2. This is C1 and this is C2. So ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? We are considering that two sides of the coil, that is A1, A2, B1, B2, C1, C2 to determine the position of dot. So आपने देखा है कि जब हम डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो A2 is connected to B1, dissimilar side are connected and a dot is provided with A1. So this is the dot position in transformer A and the dot is provided on B1, so this is the dot position for B and this is the dot position for C. This is the dot position for C, or you can take here, this dot is here and this is at C1. ठीक है, so these are the dot position in primary side of three transformers. ठीक है, अब देखिएगा ये हमारी लाइन करंट है IA, IB और IC. So we will consider the phase currents because in case of delta the line current and phase currents are different. So we will consider this is IAB, this is phase current from A to B. So rub these, there is no meaning of this. So this is IAB and this will be from B to C, so this current will be IBC and this is from C to A, this current is IC. So this is the primary side in which three single phase transformer are connected in delta phase. Similarly, we can draw the secondary side of three single phase transformer connected in delta, like this is A terminal, this is B terminal and this is C terminal. See here, this is C terminal. So this is line current IA, this is line current IB and this is line current IC. ठीक है, now see here, we have to determine the direction of these phase currents. So one phase current we will take from A to B, so it will be IAB. Next is B to C, this will be IBC and this current will be ICA. These are the three phase currents and dot will be provided with, this is coil A with A1 and A2, this is B1 and B2, so this will be the dot here and this will be the dot here. Okay, so we can write this is the line voltage VAB primary side, this is VAB line voltage, this is VBC and this is the line voltage VCA, this is VCA. These are the line voltage and in case of delta connection you know the line voltage is equal to phase voltage. Similarly here we can write the line voltage is VAB
this is line voltage VBC, and this is line voltage VCA, like that, VCA, and these line voltage are equal to respective phase voltages. We are considering this is a balanced system. So assumption is that this is a three-phase balanced system with phase sequence A, B and C. ठीक है, अब देखिएगा ये सिस्टम हमारा कहलाता है दिस इज हेल्दी सिस्टम, मींस दिस इज हेल्दी सिस्टम. In this system, both the primary and secondaries are connected in delta fashion, and the transformer is operating under full load condition, and load share by the transformer is rated load. ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में आपका ट्रांसफॉर्मर ऑपरेट कर रहा है और टोटल लोड जो फुल लोड है उसको शेयर कर रहा है. अब सपोज ये मान लेते हैं कि ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग कंडीशन देयर इज ए फॉल्ट इन एनी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, किसी ट्रांसफॉर्मर में, यहाँ पर तीन ट्रांसफॉर्मर आप देख रहे हो, दिस इज 1 2 एंड 3, दिस इज 1 2 एंड 3, दीज आर द प्राइमरीज एंड दीज आर द सेकेंडरी. अब सपोज किसी वजह से फॉल्ट हो जाता है किसी ट्रांसफॉर्मर में और उस ट्रांसफॉर्मर को हमें रिमूव करना है, मींस आइसोलेट करना है कनेक्शन से, तब क्या होगा, तब ये देखते हैं. तो मान लिया ये वाला जो ट्रांसफॉर्मर में है हमारा, दिस ट्रांसफॉर्मर ये हमारा फॉल्टी है. सपोज यहाँ पर हमारा फॉल्ट हो जाता है, तो दिस इज द फॉल्टी ट्रांसफॉर्मर. तो जब ये ट्रांसफॉर्मर में हमारा फॉल्ट हो जाता है तो इस ट्रांसफॉर्मर को हमें रिमूव करना पड़ेगा. तो आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर, सी व्हाट विल बी द कनेक्शन डायग्राम. सो द कनेक्शन डायग्राम विल लुक लाइक दैट. This is connection diagram, this is phase A, this is B and this is C, like that. This is the dot polarity and this is the dot polarity. This is A phase, this is B phase and this is C phase. This is primary, and similarly the secondary will be like that. This is secondary. This is A, this is B and this is C. This is dot placed here for A and dot placed for here, that is for C. So B type of transformer has been removed from the connection. So in that case you can see this is the line current, this is IA, this is IB and this is IC. Now this line currents become equal to phase current, so this will be IA, okay, and this will be IC. Similarly this will be IC. These are the line current, that is IA, this will be IB and this is IC. So now this line current, here this is phase current IAB, so it will be equal to line current, it will be equal to IB, and this is the line current ICA. Now this will be equal to, it will be equal to IC. Yeah, you can see here this will be equal to IC. So this is IC, the direction is from in this side. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही एक वाइंडिंग या एक ट्रांसफॉर्मर आपका रिमूव हुआ, ये आपके पास कनेक्शन बच जाता है. दिस इज कॉल्ड एज ओपन डेल्टा कनेक्शन. दिस इज कॉल्ड एज ओपन डेल्टा कनेक्शन. तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या अगर हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर में फॉल्ट हो जाता है और उसको हम रिमूव कर देते हैं, तब भी हमारे पास सिस्टम बैलेंस बचता है या नहीं. ठीक है, ये हमें चेक करना है कि क्या हमारे पास सिस्टम बैलेंस बच रहा है या नहीं बच रहा. तो इसके लिए देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो लाइन वोल्टेज कितना आपके पास, दिस इज VAB एंड दिस वोल्टेज इज VBC एंड दिस वोल्टेज इज VCA. तो आप देख सकते हो VAB इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस वाइंडिंग. सो VAB is equal to the, suppose this is VS at an angle of 0 degree and VBC
is the voltage across this winding. So this will be PVC is equal to, that is equal to Vs at an angle of -120 degree, जिसको हम लिख सकते हैं Vs into -0.5 minus j 0.866. You can write it, that is cos theta minus j sin theta. So you will get Vs into -0.5 minus j 0.866. So अगर ये सिस्टम आपका बैलेंस है तो टू चेक आउट द बैलेंस कंडीशन ऑफ सिस्टम, द sum of these three line voltages, that is VAB, VBC and VCA should be equal to 0. So let's check the condition for balance. तो हमें देखना है कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं, तीन आउटपुट वोल्टेज, दैट इज VAB, VBC एंड VCA, आर दे बैलेंस और नॉट? सो VAB अभी आपको बताया मैंने, इस वाइंडिंग के अक्रॉस मिलेगा, तो दिस इज VS एट 0 डिग्री. दूसरा वोल्टेज आपका 120 डिग्री पर मिलेगा, दैट इज VS माइनस 120 डिग्री. सो वी विल चेक द वैल्यू ऑफ VCA. ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं. So we know for balance condition, the sum of three line voltage, that is VAB plus VBC plus VCA should be equal to 0. These are the phasor quantities. Now VAB we are getting, that is VS at 0 degree plus this is VS at -120 degree plus VCA is equal to 0. So VCA will be equal to, this is minus VS at 0 degree minus VS at -120 degree. So this will be minus at 0 degree, that is cos 0 plus j sin 0. Sin 0 is 0, so it will be minus VS minus of, it will be minus 0.5 plus j, sorry this is minus j 0.866. Okay? So it will be minus VS into, sorry this is minus VS plus 0.5 VS minus plus j 0.866 VS. So we will get, it is 0.5 minus 0.5 plus j 0.866 VS, जिसको हम लिख सकते हैं, this is equal to, this is VS at an angle of -240 degree. This is VCA. इस तरह से आप देख सकते हो कि आपके पास जो तीसरा वोल्टेज आ रहा है, दैट इज VS at -240 डिग्री. इसका मतलब दिस इज द फर्स्ट वोल्टेज VAB is equal to VS at 0 degree. This is second voltage VS at -120 degree and this is third voltage VS at -240 degree. It means, इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में हमारा फॉल्ट हो जाता है और उसको डेल्टा कनेक्शन से हम रिमूव कर देते हैं, तब भी अगर दो ट्रांसफार्मर हमारे कनेक्ट रहते हैं, तब भी जो आउटपुट हमें मिलता है, दैट इज ए थ्री फेज बैलेंस्ड सप्लाई. ठीक है, इसका मतलब इस कनेक्शन से हम थ्री फेज बैलेंस लोड को हैंडल कर सकते हैं, ऑपरेट करा सकते हैं. ठीक है, सो वी कैन राइट ए लाइन हियर, even though a single phase transformer is removed from delta connection, we get balanced three phase supply in the output, and hence the three phase load can be operated with this arrangement. So this is the objective of open delta connection. ठीक है, कि अगर एक ट्रांसफार्मर को हम रिमूव भी कर देते हैं तो आउटपुट में हमें जो सप्लाई मिलती है, दैट इज थ्री फेज बैलेंस सप्लाई. इसका मतलब जो थ्री फेज लोड को हम सप्लाई दे रहे हैं वो आपकी इंटरप्ट नहीं होगी और कंटिन्यूअसली आप लोड को सप्लाई दे सकते हो. ठीक है, लेकिन कितनी सप्लाई दे सकते हैं, कितने लोड को आप हैंडल कर सकते हैं, वो अभी देखेंगे. ठीक है,
सो अगर मैं डेल्टा डेल्टा की बात करता हूं, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं डेल्टा डेल्टा की बात करता हूं तो लोड शेयर्ड बाय डेल्टा डेल्टा कनेक्शन मीन्स दिस इज हेल्दी कनेक्शन। ओके, मतलब जब कोई फॉल्ट नहीं है उस केस में आप देखते हो कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, तो लोड शेयर्ड जो हो जाएगा, लोड या एपरेंट पावर लिख सकते हैं, एपरेंट पावर आउटपुट कितनी होगी, सो इट विल बी एस डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू, द फॉर्मूला फॉर दैट इज 3√3 VL into IL. So in case of delta connection, VL is equal to VP. VL is equal to what? This is VP, and IL is equal to √3 times of IP. You know, when the transformer are connected in delta delta, so apparent power output will be as delta delta is equal to √3 VP and √3 IP. So as delta delta is equal to, it will be 3 VP into IP. सो इतनी एपरेंट पावर आप डिलीवर करोगे जब आपका कनेक्शन कैसा है, डेल्टा डेल्टा, और ये क्या है आपका, दिस इज रेटेड लोड, इट इज रेटेड लोड, मींस आप फुल लोड को ऑपरेट करा रहे हो, मतलब फुल रेटेड पावर आप एपरेंट पावर लोड को दे रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड एज रेटेड लोड, दैट इज 3 VP IP. नाउ इन केस ऑफ लोड शेयर in VV connection, मतलब this is the faulty condition, so you know, in case of faulty condition, if we see that the output connection is like that, this is the output connection, this is A, this is B, and this is C, this is dot here, this is dot here, this is IB, this is IA, this is IB, this is IC, and this is IC. ठीक है, क्योंकि करंट आपका सेम हो जाता है, जो लाइन से करंट जा रही है वही इस फेज से आ रही है। ठीक है, डोंट माइंड कि डेल्टा में हमने ये डायरेक्शन इधर दिखाई थी, ये डायरेक्शन इसलिए दिखाई थी कि उस समय कनेक्शन हमारा कैसा था, डेल्टा, लेकिन जब ये पार्ट हमारा ओपन हो गया, देन दिस लाइन करंट विल बी इक्वल टू दिस फेज करंट, सो द करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइन वोल्टेज, दिस इज VAB इज इक्वल टू VL, सो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज, सो यहाँ पर VL इज इक्वल टू VP, और आप देख सकते हो कि जो आपकी ये लाइन करंट है वही आपकी फेज करंट है, सो आपकी जो लाइन करंट होगी वो क्या होगी, आपकी फेज करंट के बराबर होगी। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन डेल्टा डेल्टा कनेक्शन एंड VV कनेक्शन इज दैट द लाइन वोल्टेज इन डेल्टा डेल्टा कनेक्शन इज इक्वल टू VP, it is okay, but line current is √3 times of VP. But in case of VV connection, the line voltage is equal to VP, that is in case of delta delta, but the line current is here equals to IP. So total apparent power output कितनी हो जाएगी आपकी, SVV is equal to √3 VL into I. This is formula for 3 phase apparent power. So in that case, this is √3 VL is equal to VP and IL is equal to IP, that is SVP. This is equation second and this is equation first. So VV कनेक्शन में आप देख रहे हो कितना मिल रही है आपको, √3 times of VP IP, means we are getting low output power in case of VV connection. ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं, we can take the ratio of SVV upon S delta delta is equal to, it will be √3 VP IP upon, it will be 3 VP IP, it will be cancelled out, so SVV is equal to √3 times of S delta delta, so this is 1 upon √3 times of S delta delta, that is 0.577 of S delta delta. So SVV we are getting only 57.7% of S delta delta. ठीक है,
मतलब कितनी एपरेंट पावर आप देख सकते हो, डेल्टा डेल्टा में आप रेटेड पावर दे सकते हो 3 VPIP, ठीक है। बट इन केस ऑफ ओपन डेल्टा यू कैन डिलीवर ओनली द 57.7% ऑफ एस डेल्टा डेल्टा, मतलब जो रेटेड लोड है उसका कितना पार्ट आप डिलीवर कर सकते हो, केवल 57.7% लोड को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। सो वी कैन राइट विद VV connection we can operate only 57.7% of full load without interruption in supply, ठीक है। अच्छी बात यह है कि अगर एक ट्रांसफॉर्मर आपका डैमेज भी हो जाता है, किसी ट्रांसफॉर्मर को अगर आप रिमूव करते हो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन से, तो जो दो बचे हुए ट्रांसफॉर्मर हैं वो लोड को हैंडल कर लेंगे, ऑपरेट करा देंगे कम पावर पर, दैट इज 57.7% पर। मींस देयर विल बी नो interruption of supply, there will be continuity of supply. This is the main advantage of VV connection, ठीक है। लेकिन मुझे बताइएगा कि कितना लोड हम हैंडल कर सकते हैं विद VV कनेक्शन, दैट इज 57.7% ऑफ रेटेड लोड, और रेटेड लोड कितना है आपके पास 3 VPIP, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, VV कनेक्शन यूज कर रहे हैं, मींस दो ट्रांसफार्मर को हम ऑपरेट करा रहे हैं, और रेटेड लोड अगर हम कम नहीं करते हैं, करना क्या चाहिए कि जब हमारे ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हो रहा है तो हमें लोड को रिड्यूस कर देना चाहिए, कितना 57.7% फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ VV कनेक्शन। बट अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और रेटेड लोड ही चलाते हैं तो उस समय क्या होगा, कि आपकी जो करंट है, फेज करंट, दैट विल इंक्रीज। तो देखते हैं कि अगर रेटेड लोड ही ट्रांसफार्मर पर लगाते हैं तो करंट आपकी कितना इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो इफ द rated or full load is connected with VV connection, so क्या होगा, कितनी पावर हम डिलीवर कर सकते हैं SVV में, हम कर सकते हैं दैट इज √3 BP into IP, इतनी तो कर सकते हैं। लेकिन करना कितना चाह रहे हैं हम, दिस इज 3 VPIP, दैट इज रेटेड आउटपुट, डिलीवर करना चाह रहे हैं इतनी पावर से। सो इसको बैलेंस करने के लिए इस पावर को इस पावर के बराबर हमें बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज में तो कोई चेंज हम कर नहीं सकते, ठीक है। सिर्फ तो क्या होगा, आपकी करंट इंक्रीज होगी। सपोज ये करंट कितनी हो जाती है IP डैश, सो फ्रॉम हियर IP डैश विल बी इक्वल टू, दिस इज 3 VPIP अपॉन, सो इट विल बी √3 टाइम्स ऑफ I। तो आप देख सकते हो कि अगर VV कनेक्शन पर ही आप रेटेड लोड ऑपरेट कराते हो तो उस समय आपकी करंट IP इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कितना इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज इन फेज करंट कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ √3 इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 1.732, so it will be 73.2%, ठीक है। सो अगर ये करंट आपकी इंक्रीज हो रही है, रेटेड लोड अगर आप ट्रांसफार्मर पर चला रहे हो आफ्टर द फॉल्ट कंडीशन या ऑन VV कनेक्शन, अगर आप रेटेड लोड ऑपरेट करा रहे हो तो आपकी करंट बढ़ जाएगी, और कितनी बढ़ जाएगी 73.2%, दैट इज डेंजरस फॉर योर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ठीक है। तो अगर आप इसकी जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट है दैट इज अकॉर्डिंग टू IP, बट अब आप कितनी करंट फ्लो करा रहे हो, मोर देन IP, दिस इज 73.2% इंक्रीज करंट आप इसमें फ्लो करा रहे हो, तो वाइंडिंग का टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर वाइंडिंग का टेम्परेचर होगा इंक्रीज तो इंसुलेशन आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इंसुलेशन अगर आपका ब्रेक डाउन होगा तो वाइंडिंग आपकी डैमेज हो सकती है, फॉल्ट हो सकता है, अगर आप कंटिन्यूअसली VV कनेक्शन पर रेटेड लोड चलाते हो। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जैसे ही आपका फॉल्ट हो रहा है और आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर VV कनेक्शन में ऑपरेट हो रहा है, देन यू हैव टू रिड्यूस द लोड टू 57.7%, ठीक है। नेवर ऑपरेट द फुल लोड ऑन VV कनेक्शन। नाउ
Next, we will see that here we have two transformer only. In case of VV connection, we have two transformer like that. देखिएगा, ये ट्रांसफॉर्मर नंबर मैं 1 मान लेता हूँ, दिस इज T1 एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मर नंबर T2. ये दो ट्रांसफॉर्मर हैं आपके पास. दिस वोल्टेज इज VAB विच इज इक्वल टू VL, दिस वोल्टेज इज VBC एंड थर्ड वोल्टेज इज इक्वल टू दिस इज VC. ठीक है, तीन आपके पास लाइन वोल्टेज है, दो आपके पास ट्रांसफॉर्मर है T1 और T2. तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये टोटल कितनी पावर शेयर कर रहे हैं, तो ये 57.7% कर रहे हैं. तो अगर मैं आपसे कहूं कि T1 कितनी कर रहा है पावर शेयर और T2 कितना कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये जवाब देंगे कि जो टोटल आउटपुट पावर हम शेयर कर रहे हैं 50% T1 करेगा और 50% T2 करेगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट कि T1 50% करेगा और T2 50% करेगा. ठीक है, वो डिपेंड करेगा इनके कनेक्शन पर, वो डिपेंड करेगा इनके कनेक्शन पर. तो देखिएगा, अब देखते हैं हम कि T1 और T2 कितनी पावर शेयर करते हैं. तो पावर शेयर्ड बाय टू ट्रांसफॉर्मर्स इन VV कनेक्शन. ठीक है, तो यहां हम बना लेते हैं, ये हमारे पास VV कनेक्शन है. लेट्स ड्रॉ अगेन, दिस इज VV कनेक्शन लाइक दैट. This is phase A, this is phase B, and this is phase C. This is phase A, this phase B, and this phase is C. This is dot, this is dot. This current is IB, and this current is IC. This is IA, and this is IB, and this is IC. ठीक है. So यहाँ पर हमारे पास लाइन वोल्टेज है. This is VAB इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज VL. बैलेंस सप्लाई मान रहे हैं तो लाइन वोल्टेज सेम रखेंगे. दिस इज BC एंड दिस इज BC, दिस इज BC. ठीक है, अब हमें क्या करना, हमें पावर मेजर करनी है कि ये ट्रांसफॉर्मर T1 कितनी पावर डिलीवर कर रहा है और T2 कितनी पावर डिलीवर कर रहा है. तो क्या करते हैं, थ्री फेज सिस्टम में अगर आपको पावर मेजर करनी होती है देन यू यूज ए 2 वाट मीटर मेथड. ओके, यू कैन यूज 2 वाट मीटर मेथड. सो क्या करेंगे, एक वाट मीटर हम यहां लगाएंगे इन फेज ए. सो दिस इज वाट मीटर कनेक्टेड इन फेज ए एंड प्रेशर कॉइल विल बी कनेक्टेड टू फेज बी. दिस इज सपोज वाट मीटर W1. सिमिलरली एक वाट मीटर हम लगाएंगे फेज सी में. तो एक वाट मीटर हम लगा रहे हैं, दिस इज वाट मीटर इन फेज सी लाइक दैट, एंड फेज कॉइल विल बी कनेक्टेड विद फेज बी. दिस इज W2. So this is W1 and this is wattmeter W2. This phase current, line current is IA and this line current is IB and this is IC, like that. So we have to determine the reading of W1 and W2. तो इसके लिए हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो सप्लाई मिल रही है, we have already proved that is a balanced 3 phase supply. So यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मान लिया ये हम this is voltage of A phase. Out of 120 degree there will be BB. This is 120 degree and this is VC, like that. तीन हमारे पास बैलेंस्ड वोल्टेज हैं, दैट इज VA, VB एंड VC. अब बात आती है कि इनकी रेस्पेक्टिव जो फेज करंट होगी वो कहाँ होगी. तो उसके लिए हम मान लेते हैं लोड किस तरह का है. तो लेट लोड इज लैगिंग लोड, यानी हर फेज की जो करंट है अपने रेस्पेक्टिव वोल्टेज से लैग करेगी कितने डिग्री से, 5 डिग्री से. सो मान लेते हैं दिस इज करंट IA, दिस करंट इज IA एंड दिस एंगल इज 5. सिमिलरली द फेज B की जो करंट होगी, दिस इज IB एंड दिस एंगल विल बी 5. मींस IB विल लैग बाय 5 डिग्री विद B. Similarly, IC will lag by an angle of 5 with BC. This is IC. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि जो रीडिंग होगी W1 की, तो W1 के लिए आप देख सकते हो कि W1 की रीडिंग कितनी होगी. तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा
कि W1 कितने वोल्टेज मेजर कर रहा है और W1 से करंट कितनी फ्लो कर रही है। तो आप देख सकते हैं करंट कितनी फ्लो कर रही है, इसी करंट कॉइल से IA और प्रेशर कॉइल इज कनेक्टेड इन बिटवीन A एंड B. A is positive, B is negative. This is positive, this is negative because dot is always considered as positive. So we have to obtain the angle between IA and VAB. ठीक है, रीडिंग ऑफ W1, अगर मैं W1 की बात करता हूं तो रीडिंग ऑफ W1 विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द प्रेशर कॉइल विल बी इक्वल टू VAB and current through current coil is equal to IA and cos angle between VAB and IA. ठीक है, तो देखते हैं हमें चाहिए VAB. तो VAB दिस इज VA फेजर, दिस इज VB फेजर एंड दिस इज VC फेजर. तो VAB को हम क्या लिख सकते हैं, VAB फेजर कैन बी रिटन एज VA फेजर माइनस VB फेजर लाइक दैट. So this is VA, we need minus VB, so minus VB will be 180 degree apart like that. This is minus VB, so this will be minus VB, and resultant of minus VB and VA will give you that is VAB. It is VA. ठीक है, so we have to check the angle between VAB and IA. So you know this whole angle is from here to here, this is 120 degree. So these are the equal vectors, so this vector will divide this whole angle 120 degree by 2. So this angle will be 60 degree, this will be 60 degree. When this will be 60 degree, these VA and VB are equal, that's why their resultant will divide 60 into equal parts. So this will be 30 degree and this total angle will be 30 plus 5. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं W1 की जो रीडिंग होगी that is W1, इसको लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू VAB. क्या है आपके पास, VAB इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज VL, IA इज इक्वल टू IL एंड दिस विल बी द एंगल बिटवीन VAB एंड IA. यू कैन सी दिस इज 30 plus 5, so we can write this is cos 30 plus 5. ठीक है, so this is the load shared by transformer P1, sorry ट्रांसफॉर्मर T1 that is equal to P1 is equal to VL IL cos 30 plus 5. ठीक है, इसी तरह से हम देख सकते हैं रीडिंग ऑफ वाटमीटर W2. सो रीडिंग ऑफ वाटमीटर W2, रीडिंग ऑफ वाटमीटर W2, देखिएगा ध्यान से, जो वाटमीटर W2 लगा हुआ है, द करंट फ्लो थ्रू W2, करंट कॉइल इज IC एंड वोल्टेज अक्रॉस प्रेशर कॉइल इज फ्रॉम C to B. So W2 will be equal to, it will be VCB into current is IC and cos angle between VCB and IC. ठीक है, तो check it here, we have to determine the value of VCB. So I can rub it now. That is VCB. So VCB को हम क्या लिख सकते हैं, VCB फेजर इज इक्वल टू दिस इज VC फेजर प्लस माइनस VB फेजर लाइक दैट. तो देखिएगा VC फेजर हमारे पास ये है और माइनस VB फेजर ये है. सो इनका हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे. वी विल कैलकुलेट द रिजल्टेंट. दिस इज VC एंड दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ VC एंड माइनस VB, दैट इज VCB फेजर. ठीक है, सो वी हैव टू डिटरमाइन this angle, this total angle is how much, this is equal to 30 degree, so this angle will be 30 minus 5. So we can write P2 is equal to VCB. VCB is nothing but it is the line voltage VL. IC is equal to IL and cos this is 30 minus 5. ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पावर ट्रांसफर होगी या पावर डिलीवर्ड होगी बाय ट्रांसफॉर्मर T1 एंड T2, दैट विल बी नॉट इक्वल, दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पावर फैक्टर ऑफ द लोड. ठीक है, बाय चेंजिंग द पावर फैक्टर ऑफ लोड द अमाउंट शेयर्ड बाय ट्रांसफॉर्मर T1 एंड T2 विल चेंज. सो T1 की जो रीडिंग होगी, जो पावर होगी, दैट इज VL IL cos 30 plus 5, और T2 जो पावर शेयर करेगा दैट इज VL IL cos 30 minus 5. ठीक है, तो कभी ये मत देखिएगा कि टोटल पावर हमें कितनी मिल रही है. सपोज हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है
जो रेटेड ट्रांसफॉर्मर है सपोज 100 kVA का है, मीन्स रेटेड लोड आपके पास कितना है 100 kVA। मैं कहूँ कि वीवी कनेक्शन में कितनी पावर डिलीवर करोगे आप, तो वीवी कनेक्शन में आपका हो जाएगा 100 इंटू 57.7%, ठीक है। सो इट विल बी 57.7 kVA। द टोटल पावर you will deliver it will be 57.7 kVA। और ट्रांसफॉर्मर आपके पास जो है, मैं कह रहा हूं आपसे कि ईच ट्रांसफॉर्मर कितना kVA डिलीवर करेगा, सो डोंट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, बिकॉज द पावर शेयरिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विल डिपेंड अपॉन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, ठीक है। सो इन दैट वे वी हैव डिस्कस्ड द पीवी कनेक्शन एंड और ओपन डेल्टा कनेक्शन इन डिटेल, ठीक है। हमने देखा कि किस तरह से अगर एक ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है उसको रिमूव कर देते हैं डेल्टा बैंक से या डेल्टा कनेक्शन से, तो दो ट्रांसफार्मर भी हमारे विदाउट इंटरप्शन ऑफ सप्लाई पावर को कंटिन्यू रख सकते हैं, लोड को ऑपरेट करा सकते हैं विद लो पावर, दैट इज 57.7 ऑफ रेटेड पावर, ठीक है। अगर रेटेड लोड ही आप ट्रांसफार्मर पर लगाते हो, फुल लोड ही लगाते हो विदाउट रिड्यूसिंग द लोड, अगर वीवी कनेक्शन में आप ऑपरेट कराते हो तो फेज करंट आपकी बढ़ जाती है 73.2%, जो आपकी वाइंडिंग को डैमेज कर सकती है। इसलिए जब भी आपका ट्रांसफार्मर वीवी कनेक्शन में ऑपरेट होता है, योर ड्यूटी इज टू रिड्यूस द लोड अप टू 57.7%, ठीक है, अदरवाइज योर ट्रांसफार्मर विल गेट डैमेज। उसके बाद हमने देखा कि जो रिमेनिंग 2 ट्रांसफार्मर ऑपरेट हो रहे हैं वीवी कनेक्शन में, वो कितना लोड शेयर कर रहे हैं, तो दे आर नॉट शेयरिंग द 50% लोड, द लोड शेयर विल बी डिपेंड अपॉन द लोड पावर फैक्टर, दैट इज P1 एंड P2। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। इन द कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वीवी कनेक्शन। सो I hope that you have enjoyed the lecture, and if you have enjoyed the lecture, please subscribe the channel, share and like the videos. Thank you.